بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب بخیر ہوں گے۔ ہم نے کل علم ہجا کی بحث مکمل کر لی تھی اور علم ہجا کو لگ بھگ پورا ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا۔ علم ہجا پڑھنے کے بعد ہمیں کتنی معلومات حاصل ہوئی، اس کے مشق کے لیے چند مشقی سوالات آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ان سوالات کو دیکھیے، ان میں بعض سوالات تو وہ ہیں جو اسٹیٹ جو کہ بہار گورنمنٹ لیتی ہے اور بی پی ایس سی کا ایگزام جو ہوتا ہے، تو بی پی ایس سی نے اور اسٹیٹ یعنی بہار بورڈ نے جو سوالات پوچھے ہوئے ہیں علم حجاز سے متعلق، وہ سوالات بھی رکھے گئے ہیں اور ساتھ ہی کچھ سوالات، اضافی سوالات جو میں نے خود تیار کیے ہیں، وہ بھی اس مشقی سوالات میں شامل ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی سوالات کے جوابات دے پائیں گے، بشرطے کہ آپ نے میرا پچھلا ویڈیو دیکھا ہو اور علم ہجا کو صحیح ڈھنگ سے سمجھ لیا ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں آج کے مشقی سوالات۔ پہلا سوال ہے کہ کون سی علامت کے استعمال سے حرف میں حرکت نہیں ہوتی؟ یہ اسٹیٹ 2023 میں یہ سوال پوچھا گیا تھا، جو کہ 9th کے لیے جو پیپر ہوا تھا اس میں۔ اس کا پہلا جواب ہے تنوین، اور ہم نے آپ کو پڑھایا کہ تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو زبر، دو زیر اور دو پیش کو تنوین کہتے ہیں، جبکہ سوال یہ ہے کہ کون سی علامت کے استعمال سے حرف میں حرکت نہیں ہوتی؟ تو تنوین دو زبر زیر پیش یعنی دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں، تو یہ تو ہو نہیں سکتا۔ مد یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ سی میں ہے جزم اور ٹی میں ہے تشدید، تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا جزم، کیونکہ جہاں پہ جزم ہوتا ہے وہاں پہ کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ میں نے شخص کی مثال دے کے آپ کو سمجھایا تھا کہ شخص میں شین اور صاد یہ دونوں متحرک ہیں، شین بھی متحرک ہے، صاد بھی متحرک ہے، لیکن خ کے اوپر جزم ہے، تو جس کے اوپر جزم ہو وہ متحرک نہیں ہوتا، اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی۔ اگلا سوال ہے کہ جس حرف کے اوپر چھوٹا سا الف کا نشان لگا دیا جاتا ہے اور وہ الف کی آواز دیتا ہے، تو اس الف کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ بھی اسٹیٹ 2023 پیپر 1 کا سوال ہے۔ جوابات میں ہیں الف ممنوعہ، الف مقصورہ، الف ممدودہ اور الف مضمومہ۔ ان میں صحیح جواب کیا ہوگا؟ آپ جلدی بتائیے، آپ بھی اپنا جائزہ لیتے رہیں۔ جس حرف کے اوپر چھوٹا سا الف کا نشان لگا دیا جاتا ہے اور وہ الف آواز دیتا ہے کس کی؟ اور وہ الف کی آواز دیتا ہے، تو اس الف کو کیا کہا جاتا ہے؟ اس کی مثال جیسے کبرا ہے، کبرا، یہاں پر دیکھیے چھوٹا سا الف ہم نے لگا دیا، نشان لگایا چھوٹا سا، اور یہ چھوٹا سا جو نشان ہے یعنی اس نشان کی بات کر رہے ہیں، یہ نشان کس کی آواز دے رہا ہے؟ الف کی۔ ایسے ہی صغرا ہے، صغرا، تو یہ صغرا، کبرا، عقبہ، تو اس طرح کے جو بھی الفاظ ہیں جس کے آخر میں چھوٹا سا الف کا نشان لگایا جاتا ہے، وہ نشان الف کی آواز دیتا ہے، تو اس نشان کو کیا کہتے ہیں یا اس الف کو کیا کہتے ہیں؟ تو اس کو الف ممنوعہ نہیں کہتے، الف ممدودہ بھی نہیں کہتے کیونکہ الف ممدودہ تو مد والے کو کہتے ہیں، الف مضمومہ بھی نہیں کہتے کیونکہ مضموم اس حرف کو کہتے ہیں جس کے اوپر ضمہ یعنی کہ پیش ہو، یہ بھی نہیں کہتے۔ تو ہمارا صحیح جواب ہو جائے گا الف مقصورہ۔ یہ ساری باتیں ہم نے پچھلے ویڈیوز میں پڑھا دیے ہیں، امید کرتا ہوں کہ آپ نے اسے دیکھا ہوگا۔ اگر نہیں دیکھا ہے تو آپ اسے اب دیکھ سکتے ہیں اور پھر ان سوالات کو بآسانی آپ حل کر سکتے ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ سادہ آوازوں کو تحریری علامت میں لانے کا نام ہے۔ یہ بی پی ایس سی TRE 3 میں پوچھا گیا سوال ہے کہ سادہ آوازوں کو تحریری علامت میں لانے کا نام کیا ہے؟
تو سادہ آوازوں کو تحریری علامت میں لانے کا نام یہ حرف ہے. اس کا صحیح جواب ہے حرف. یہ صحیح جواب ہے کیونکہ جو حرف کی تعریف ہے وہ یہی ہے کہ سادہ آوازوں کو تحریری علامت میں لانے کا نام حرف ہے. کلمہ نہیں ہو سکتا، لفظ بھی نہیں ہو سکتا، اور جب یہ سارے نہیں ہیں تو حسب بالا میں سے زائد یا حسب بالا میں سے کوئی نہیں، یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے. آگے دیکھتے ہیں. سوال نمبر 4 یہ ہے کہ ذیل میں کس میں حروف کی آواز اور ان کی حرکات و سکنات سے بحث کی جاتی ہے؟ اس میں 4 ممکنہ جوابات دیے گئے ہیں. پہلا جواب ہے اے کے تحت علم عروض، دوسرا جواب ہے علم ہجا، تیسرا ہے علم صرف، اور چوتھا ہے حسب بالا میں سے ایک سے زائد، اور پانچواں ہے حسب بالا میں سے کوئی نہیں. اب اس سوال کو سمجھیے کہ کس میں حروف کی آواز اور ان کی حرکات و سکنات سے بحث کی جاتی ہے. علم عروض میں اشعار کے اوزان اور الفاظ سے گفتگو کی جاتی ہے، ردیف و قافیہ کی بات ہوتی ہے. تو یہ علم عروض میں آواز اور ان کی حرکات و سکنات سے بحث نہیں ہوتی، لہٰذا یہ غلط ہے. سی میں ہے علم صرف. علم صرف میں لفظوں سے بحث کی جاتی ہے، حروف سے بحث نہیں کی جاتی. علم صرف میں بحث ہوتی ہے لفظوں سے، حروف سے نہیں. اور لفظ کیسے بنتا ہے؟ حروف کی ترکیب سے یا حروف کے میل سے، یہ ہم پڑھا چکے ہیں. تو علم صرف بھی یہ نہیں ہو سکتا. ہاں، یہ بی جو دوسرا جو ممکنہ جواب دیا گیا ہے بی کے تحت علم ہجا، تو علم ہجا میں حروف کی آواز اور ان کی حرکات و سکنات سے بحث کی جاتی ہے، لہذا صحیح جواب یہی ہوگا علم ہجا. اگلا سوال ہے قواعد میں کس طرح کے الفاظ سے بحث کی جاتی ہے؟ یہ بھی بی پی ایس سی TRE 3 میں پوچھا گیا سوال ہے. قواعد میں کس طرح کے الفاظ سے بحث کی جاتی ہے؟ ہم نے اس پر پوری گفتگو کر لی ہے. آپ میرا ویڈیو دیکھیں گے تو یقیناً یہ سارے سوالات کے جوابات آپ کو اس میں مل جائیں گے. ممکنہ جوابات میں پہلا ہے اے مہمل الفاظ، مہمل یعنی بے معنی الفاظ. بی کے تحت دیا گیا ہے بامعنی الفاظ، سی کے تحت بے معنی الفاظ، اور ڈی حسب بالا میں سے ایک سے زائد، یا ای حسب بالا میں سے کوئی نہیں. قواعد میں کس طرح کے الفاظ سے بحث کی جاتی ہے؟ تو قواعد میں جب مہمل الفاظ اے کے تحت دیا ہے اور سی کے تحت دیا ہے بے معنی الفاظ، تو یہ مہمل الفاظ اور بے معنی الفاظ لفظ بدل دیا ہے لیکن دونوں کا مطلب ایک ہی ہے. ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. جو بے معنی الفاظ ہے وہی مہمل الفاظ ہے، جو مہمل الفاظ ہے وہی بے معنی الفاظ ہے. میں نے قواعد کی شروعات میں ہی بتایا تھا کہ قواعد میں بحث بے معنی یا مہمل الفاظ سے نہیں ہوتی، بلکہ بحث ہوتی ہے کس سے؟ معنی دار الفاظ سے، لہذا اس کے صحیح جواب ہوگا بی. اگلا سوال ہے کہ ذیل میں حروف شمسی کی مثال کون سی ہے؟ یہ بھی بی پی ایس سی TRE 3 میں پوچھا گیا سوال ہے کہ ذیل میں حروف شمسی کی مثال کون سی ہے. اب اس سوال کو دیکھیے. حروف شمسی اور قمری کی پہچان بھی ہم نے بتایا تھا، اور ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ اس میں ایک جملہ ہے حق کا خوف عجب غم ہے. اس حق کا خوف عجب غم ہے، اس جملے میں کل 14 حروف ہیں، اور یہ 14 کے 14 یہ حروف قمری ہیں. ان کے علاوہ جتنے بھی حروف ہیں یہ سب حروف شمسی ہیں. اور یہاں پر دیکھیے مظفر اور الدین 2 الفاظ ہیں، تو کس لفظ کے بارے میں پوچھا جا رہا ہوگا؟ یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ حروف شمسی اور حروف قمری کی پہچان کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں؟ الف لام لگا کر دیکھتے ہیں. تو مظفر میں تو الف لام لگا ہوا ہے ہی نہیں، بلکہ الف لام کس میں لگا ہے؟ الدین میں لگا ہے. یہیں پر الذکر میں لگا ہے، اور یہاں الرشید میں لگا ہے. تو ہم کو الدین میں کا دال، الذکر کی زال اور الرشید کی را کو دیکھنا ہے کہ یہ دال، زال اور را میں کون حروف شمسی ہے. تو آپ بخوبی سمجھ رہے ہوں گے کہ ان میں کون حروف شمسی ہے. دیکھیے الدین میں لام پڑھا نہیں جا رہا ہے، اور جہاں لام نہ پڑھا جائے وہاں پر وہ حروف شمسی ہوتا ہے. تو الدین یعنی الف لام کو
जब हमने दाल के साथ मिलाया तो लाम हज़फ हो गया, उसको नहीं पढ़ा गया। तो एक तो हो गया दाल में है। आगे देखते हैं साहिबुल ज़िक्र, अज़्ज़िक्र, तो अज़्ज़िक्र में भी लाम नहीं पढ़ा गया, तो यहाँ पर भी है, यहाँ दाल है, यहाँ जाल है, और अर रशीद में यहाँ पर भी लाम नहीं पढ़ा गया, तो यहाँ पर भी है। यानी कि हुरूफ शमसी ए बी सी तीनों ऑप्शन में मौजूद है। तो अब इसका जवाब हो जाएगा डी, ये इसका सही जवाब होगा, यानी हस्बे वाला में से एक से जायद, क्योंकि एक से जायद में है, ए में भी है, बी में भी है और सी में भी है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा हस्बे वाला में से एक से जायद। चलिए देखते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 7। उर्दू कवायद के कितने हिस्से होते हैं? ये आप पढ़ चुके हैं, उर्दू कवायद के कुल 5 हिस्से होते हैं, और वो क्या हैं? इल्म हिजा, इल्म सर्फ, इल्म नहव, इल्म बयान और इल्म अरूज। तो सही जवाब होगा सी, सही जवाब होगा सी। अगला सवाल है कि मुरक्कब हरूफ की तादाद क्या है? हमने बताया था कि हरूफ को, हरूफ हिजा जो है उनको 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, एक है मुरक्कब हरूफ और एक है मुफरद हरूफ। मुरक्कब हरूफ की तादाद, ये मुफरद हरूफ की तादाद 36 है, जबकि मुरक्कब हरूफ की तादाद 15 है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा बी, क्योंकि मुरक्कब हरूफ की तादाद 15 है। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। कवायद का वह हिस्सा जिसमें हरूफ के बारे में मालूमात हासिल की जाती है उसे क्या कहते हैं? कवायद का वो हिस्सा जिसमें हरूफ के बारे में मालूमात हासिल की जाती है उस हिस्से को क्या कहते हैं? कवायद के 5 हिस्से हैं, पांचों हिस्सों में से किस हिस्से में हरूफ के बारे में मालूमात दी जाती है, उस हिस्से को देखना है। इल्म सर्फ तो हो नहीं सकता, ऑप्शन में है ए, क्योंकि इल्म सर्फ में हरूफ की नहीं बल्कि लफ्ज़ों के बारे में मालूमात दी जाती है। इल्म नहव में जुमलों के बारे में मालूमात दी जाती है, तो ए और बी तो नहीं हो सकता। अब बचा सी, इल्म हिजा। हाँ, इल्म हिजा में ये हरूफ के बारे में मालूमात दी जाती है। आप इस चीज़ को जहन नशी कर लें कि इल्म सर्फ में, इल्म सर्फ जो है, इल्म सर्फ में क्या होता है, लफ्ज़ के बारे में मालूमात दी जाती है। मसलन लफ्ज़ वाहिद है, जमा है, मुज़क्कर है, मुअन्नस है, मुसग़्गर है, मुकब्बर है, तो इस तरह की बातें जहाँ पर की जाएँ तो उस इल्म का ताल्लुक इल्म सर्फ से होगा। जबकि इल्म नहव में जुमलों से बहस की जाती है, यानी कि लफ्ज़ों को जोड़कर जब जुमला बनाया जाता है तो वो जुमला किस तरीके का है, सादा जुमला है, मुल्तफ़ जुमला है, या फिर और किसी तरीके का है, मुस्बत है या मनफी है। तो इस तरह की तमाम बातें, ये जुमले की जो बातें होती हैं ये इल्म नहव में की जाती हैं, लेकिन इल्म हिजा में ये सिर्फ हरूफ के बारे में यहाँ पर बात होती है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा सी, यानी इल्म हिजा। अगला सवाल है कि ज़ैल में अलिफ ममदूदा की मिसाल क्या है? ऑप्शन में है ए में आज, बी में आम और सी में आम, डी में हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, ई में हस्बे वाला में से कोई नहीं। तो अलिफ ममदूदा यानी कि मद वाला अलिफ, आप देख रहे होंगे कि इन पांचों ऑप्शंस में से जो पहला ऑप्शन है यानी कि ए, यहाँ पर भी आज में अलिफ ममदूदा है और आम में भी अलिफ ममदूदा है, जबकि ये आइन वाले आम में अलिफ ममदूदा नहीं है बल्कि अलिफ मकसूरा है, तो ये तो हो नहीं सकता। लेकिन यहाँ पर तो ए और सी दोनों सही हैं, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा डी, यानी हस्बे वाला में से एक से ज़ायद। देखते हैं अगला सवाल। ज़ैल में वावे मारूफ की मिसाल है। ज़ैल में वावे मारूफ की मिसाल है। ऑप्शन में है ए शोर, बी मोड़, सी दौड़, डी हस्बे वाला में से एक से ज़ायद, ई हस्बे वाला में से कोई नहीं। वावे मारूफ और वावे मजहूल की डेफिनेशन और उसकी तारीफ अगर आपने पढ़ा हो और समझा हो जो मैंने पढ़ाया है तो यकीनन आपको यहाँ वावे मारूफ की शिनाख्त करना कोई भी मुश्किल काम नहीं होनी चाहिए। शोर और मोड़ में और दौड़ में, इनमें से किसी में भी वावे मारूफ नहीं है, तो जब ये किसी में भी वावे मारूफ नहीं है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ई, हस्बे वाला में से कोई भी नहीं। चलते हैं हम आगे अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 12।
वो वाव जो लिखा जाए लेकिन तलफ़ुज़ में ना आए उसे कहते हैं ए वाव मारूफ, बी वाव मजहूल, सी वाव मादुला, डी हस्ब वाला में से एक से ज़ायद, या ई हस्ब वाला में से कोई नहीं। वाव मारूफ, वाव मजहूल, वाव मादुला, इन तीनों में देखिए कि जो वाव लिखा जाए लेकिन पढ़ा जाए वो उस वाव को क्या कहते हैं। लिखा जाए लेकिन पढ़ा ना जाए उसे क्या कहते हैं। तो वाव मारूफ तो नहीं कहते, क्योंकि वाव मारूफ उस वाव को कहते हैं जो खूब खुल कर पढ़ा जाए। वाव मजहूल पढ़ा जाए लेकिन खुल कर ना पढ़ा जाए। हाँ, सी सही जवाब है कि उस वाव को जो लिखा जाए लेकिन पढ़ा ना जाए उसको वाव मादुला कहते हैं। जैसे उसकी मिसाल ख्वाजा, ख्वाब वगैरह, खुश, खुद, ये मिसालें हमने दी थी। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 13। ज़ैल में वाव मादुला की मिसाल है। वाव मादुला की मिसाल क्या है? ऑप्शन में ए खूब, बी ख्वाब, सी जवाब, डी हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, ई हस्ब बाला में से कोई नहीं। ये दोनों सवालात लगभग एक जैसे ही हैं, तो आपको बखूबी जवाब मालूम होना चाहिए। उम्मीद करता हूँ आप जवाब इसका दे पाएंगे। कमेंट में इसका जवाब आप साझा कीजिए। अगला सवाल, सवाल नंबर 14 है। ज़ैल में मुरक्कब हर्फ की मिसाल है। ए ते, बी भ, सी जीम, डी हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, ई हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो यहाँ पर ते, भ, जीम, इन तीनों में से मुरक्कब हर्फ क्या है? तो मुरक्कब हर्फ की मिसाल और उसकी तारीफ, ये तमाम बातें हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो ए तो उसका जवाब हो नहीं सकता, सी भी नहीं हो सकता, क्योंकि ते और जीम ये मुफरद हरूफ हैं, जबकि ये बी यानी कि भा ये मुरक्कब हर्फ है। मुरक्कब हर्फ की तादाद कुल 15 है। सवाल नंबर 15। दाल मिसाल है। ए हरूफ शमसी की, बी हरूफ कमरी की, सी मनक़ूत हर्फ की, या डी हस्ब वाला में से एक से ज़ायद, या ई हस्ब वाला में से कोई नहीं। तो आप देख सकते हैं कि दाल ये किसकी मिसाल है। सीधा तरीका है पहचानने का, आप जो दाल लिखते हैं, दाल, ये दाल है, इसी में अलिफ लाम लगा के देखिए। अब पढ़िए इसको, अल दाल पढ़ते हैं कि अद दाल पढ़ते हैं? क्या पढ़ते हैं इसको? अल दाल नहीं पढ़ते बल्कि अद दाल पढ़ते हैं। तो जहाँ लाम हज़फ हो जाए, ना पढ़ा जाए, वहाँ जो हर्फ आता है उस हर्फ को क्या कहते हैं? उसके बाद हर्फ शमसी। तो यहाँ पर दाल ये हर्फ शमसी या शमसी हर्फ की मिसाल है, ये कमरी हर्फ की या मनक़ूत हर्फ की मिसाल नहीं है। मनक़ूत हर्फ जिस पर नुक्ता हो उसे कहते हैं। जवाबात में ये बातें भी आपको याद रहनी चाहिए कि जो जवाब दुरुस्त है वो तो दुरुस्त है ही, जो दुरुस्त नहीं है वो क्यों नहीं है। कई बार ये बातें अगर हमें मालूम हो तो भी सवाल के जवाब तलाश करने में आसानी होती है। अगला सवाल, सवाल नंबर 16 है। ज़ैल में तहतानी मनक़ूत हर्फ है, यानी तहतानी मनक़ूत दोनों होना चाहिए। मनक़ूत यानी नुक्तादार भी हो और वो नुक्ता नीचे की तरफ हो, तो तहतानी उस हर्फ को कहते हैं जिसमें नुक्ता नीचे की तरफ हो, और मनक़ूत नुक्ते वाले को कहते हैं। आप आसानी से देख सकते हैं कि शीन, जे और बे में से किसके नीचे नुक्ता है, उसी को तहतानी मनक़ूत कहते हैं। वो सही जवाब हो जाएगा बे। सवाल नंबर 17। राह में हा डैश है जबकि रास्ता में हा डैश है। अब यहाँ पर दो खाली जगह हैं, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। हमें ये देखना है कि ये दोनों जगहों पे बितरतीब कौन से दोनों अल्फाज भरे जाएंगे। ए मनक़ूत गैर मनक़ूत। अगर मनक़ूत और गैर मनक़ूत को हम खाली जगहों में भरते हैं, देखते हैं जवाब बनता है या नहीं। राह में है मनक़ूत है जबकि रास्ता में है गैर मनक़ूत है। यहाँ के लिए तो ठीक है कि ये गैर मनक़ूत है, लेकिन यहाँ मनक़ूत गलत है।
मतलब ये नहीं हो सकता, ये कर लिया। दूसरा सवाल, दूसरा ऑप्शन है बी। बी में क्या है कि मलफूजी मुख्तफ़ी, राह में हा मलफूजी है जबकि रास्ता में हा मुख्तफ़ी है। अब इसको भी भर के देख लेते हैं। अगर यहाँ पर हम कहते हैं राह में हा मलफूजी है, तो राह में हा बिल्कुल मलफूजी है, ठीक है। रास्ता में हा मुख्तफ़ी है, ये भी बिल्कुल ठीक है। रास्ता में हा मुख्तफ़ी है, हाय मुख्तफ़ी है, और यहाँ पे हाय मलफूजी है और यहाँ पर हाय मुख्तफ़ी है। तो मलफूजी और मुख्तफ़ी को हम भी तरतीब अगर यहाँ पर भरते हैं इन खाली जगहों में, तो हमारा सही जवाब हो जाएगा बी। मुख्तफ़ी और मलफूजी सी में है, ये गलत होगा, इसलिए कि राह में जो हा है वो मलफूजी है, मुख्तफ़ी नहीं। यहाँ पर मुख्तफ़ी पहले है जबकि पहले मलफूजी होना चाहिए था। अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 18। दूर में वाव डैश है जबकि देग में या डैश है। अब इन खाली जगहों में बेआईनी ही जो सवाल 17 नंबर सवाल है उसी तर्ज पर ये दूसरा सवाल पूछा गया है। तो इसको हल करिए कि दूर में वाव डैश है, मारूफ है या मजहूल है। ऐसे ही देग में या मारूफ है या मजहूल है, ये सवाल पूछने का मकसद है। अब यहाँ पर आप देखिए, मिलाइए कि दूर में वाव, तो दूर में वाव क्या है, दूर में वाव मारूफ है, तो यहाँ पर वाव मारूफ है, ठीक है। जबकि देग में या मजहूल है, ये देग में या मजहूल है, ठीक है। तो हमारा सही जवाब हो जाएगा ए, क्योंकि दूर में वाव मारूफ, तो मारूफ को हम पहले यहाँ भर देंगे, मजहूल को यहाँ भर देंगे, तो बिल्कुल हमारी बात दुरुस्त हो जाएगी कि दूर में वाव मारूफ है जबकि देग में या मजहूल है। बी को अगर भरेंगे तो बी में पहला मजहूल है, तो अगर इस मजहूल को हम यहाँ पर भरेंगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि दूर में वाव मजहूल नहीं है। अगर सी को ले लेते हैं और मादुला को यहाँ पर भरते हैं और ये यूँ कहते हैं कि दूर में वाव मादुला है, तो भी ये गलत हो जाएगा। तो जब ये गलत हो गया, ये भी गलत है, तो सही जवाब हो गया ए। सही जवाब हो गया ए कि दूर में वाव मारूफ है जबकि देग में या मजहूल है। सही जवाब ए। देख लेते हैं हम अगला सवाल। ज़ैल में गैर मनक़ूत हर्फ है, ए बा, बी दाल, सी जीम, डी हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, ई हस्ब बाला में से कोई नहीं। तो ज़ैल में गैर मनक़ूत हर्फ कौन सा है? मनक़ूत नुक्तादार हर्फ, गैर मनक़ूत वो हर्फ जिस पर नुक्ता ना हो। हमने खूब पढ़ा हुआ है कि कौन सा हर्फ नुक्तादार है और कौन सा हर्फ नुक्तादार नहीं है। तो बे में नुक्ता है, जीम में भी नुक्ता है, तो ये दोनों मनक़ूत हो गए। अलबत्ता दाल ये गैर मनक़ूत है क्योंकि इसमें कोई नुक्ता नहीं है। अगला और आखिरी सवाल है, मुफरद हर्फ की मिसाल है। मुफरद हर्फ की मिसाल है ए बे, बी दाल, सी जीम, डी हस्ब बाला में से एक से ज़ायद, या ई हस्ब बाला में से कोई नहीं। मुफरद हर्फ की मिसाल, बे भी मुफरद हर्फ है, दाल भी मुफरद हर्फ है, जीम भी मुफरद हर्फ है। तो तीनों जवाब दुरुस्त हैं। जब तीनों जवाब दुरुस्त हैं तो हम जवाब डी पर निशान लगाएंगे कि हस्बे बाला में से एक से ज़ायद, यही होगा सही जवाब। ये कुल 20 सवालात थे जो मश्क के तौर पर लाए गए थे। उनमें कुछ सवालात तो वह हैं जो बीपीएससी और एस्टेट ने उठाए थे। अब यहीं से आज की गुफ्तगू ख़त्म होती है। अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ भी फ़ायदा हो रहा हो तो लाइक और कमेंट के ज़रिए से हमारी हौसला अफजाई कर सकते हैं, और साथ ही अगर आप वीडियोस के अपडेट पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। साथ में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। यूँ ही आपका सफ़र चलता रहे, खुश रहें, आबाद रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।